हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द प्रॉब्लम डिलीट नोट्स एंड रिटर्न फॉरेस्ट। दैट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 1110 ऑन लीड कोड। So before starting this video, I'll highly recommend that you should try it first and then come back later in this video. That will definitely help you a bit more. Okay, so without further ado, let's begin. The problem states that there are the roots of the binary tree and each node in the tree has a distinct value. So basically a tree is given here with distinct values, right? After deleting all the nodes with a value to delete, so there is another vector that is to delete. So you are going to delete some values that are given in the to delete vector in the node in the tree itself, and after deleting all the values your task is to return the roots of the trees. So basically if you will delete for example, this is a tree which is given in your question. So as you can see 1 2 3 4 5 6 7. So this is the tree which is given, right? So your task is to delete 3 and 5. Okay, so 3 is here in the right of 1 and 5 is in the right of 2. So let's take an example. So this is your 1 2 3 and 4 5. This is 6 and 7, right? This is your tree which is given in your question itself. So your task is to delete 3 and 5. Okay, your task is to delete 3 and 5. So see, अगर आप यहाँ से 3 को delete करते हो and 5 को delete करते हो, so what your tree will be after deleting? So it will be 1 2, it is 4, right, and 6 and 7. So these will be your trees, ठीक है? So the group of trees is called the forest. Okay, the group of trees is called the forest. So your task is to return the root of every tree in the forest. The root of every tree in the forest. So what your answer will be? What your answer will be? 1 as a node, 6 as a node, 7 as a node. So this will be your final output, right? So that's how you will have to solve this question. I hope the problem statement is pretty clear as well as the example. Let's begin with the code और let's begin with the logic, because सबसे पहले हम लोग को logic build करना आना चाहिए before starting writing the code. ठीक है, we should think कि क्या क्या चीज़ें हम apply कर सकते हैं, किस चीज़ से हम लोग इस problem statement को solve कर पाएंगे, या फिर what all the steps, क्या हमने ये problem statement previously कभी solve किया है, क्या इससे similar problem हमने solve किया है. We should think all of these before stating the logic. ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले कभी सॉल्व किया था तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी थी हमको, या फिर क्या हमने ऑप्टिमाइज सोल्यूशन इसका बनाया था. ठीक है, जस्ट ट्राई टू थिंक द पैटर्न्स एंड रिकॉग्नाइज इट, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. अगर नेक्स्ट टाइम यही सेम प्रॉब्लम आता है तो आप पैटर्न रिकॉग्निशन करके उसको कैच कर पाओगे कि वॉट वी शुड अप्लाई नाउ, राइट? सो दैट्स हाउ यू विल हैव टू इंक्रीज योर कोडिंग लॉजिक. ठीक है, एक प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार सॉल्व ही करते रहेंगे. आई नो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करो. ठीक है, देयर मे बी मल्टीपल अप्रोचेज, एटलीस्ट 2 to 3 अप्रोचेज सॉल्व करो, बिकॉज कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे सो वहाँ पर क्या होगा कि आपने कभी एक लॉजिक बना दिया, सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि क्या कोई और बेटर अप्रोच हो सकता है. इवन यू आर टेलिंग द बेटर वन, बट दे विल थिंक कि क्या आप कुछ और डेटा स्ट्रक्चर से इसको सॉल्व कर पा रहे हो. Is there any other approach you have? So they will definitely ask you. So if you are solving any problem, try to think in approximately 2 to 3 approaches: the brute force one, the optimized one, and the better one, right? So yeah, before okay, let's build the logic. Okay, let's build the logic. So what we need to do here is, this is the tree question, right? This is the tree question, and as we all know that in the tree question, it is a very famous approach कि हम लोग ना BFS और DFS से solve करते हैं. ठीक है, BFS या DFS, or we can solve using recursion. ठीक है, or we can solve using recursion.
बिकॉज जो भी हम लोग सारे ट्रेवर्सल्स पढ़ते हैं, आइदर इट इज़ अ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, आइदर इट इज़ अ प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, ठीक है, कोई भी ट्रेवर्सल हो हम लोग रिकर्शन से उसको बना लेते हैं। और देयर आर सम अदर ट्रेवर्सल्स ऑल्सो, जैसे मॉरिस ट्रेवर्सल एंड ऑल, ठीक है। तो आपको ट्रेवर्सल्स पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्री क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ वी विल आइट्रेट, ठीक है। अगर मुझे कोई भी ट्री में से कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, सो मैं कैसे आइट्रेट करके उसको सर्च कर रही हूँ, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग पूछते हो कि मैम कितना क्या हमें क्वेश्चंस करने चाहिए पहले से, सो द आंसर इज कि आप थोड़े बेसिक्स पढ़ लो। जैसे बेसिक्स क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, आपको ये पता होना चाहिए कि सर्चिंग कैसे होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ हमें डिलीट करनी है तो कैसे कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में से, कुछ भी चीज़ आपको लाइक आइट्रेट करना है तो आइट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो अगर कोई लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन है, अगर ये कोई लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग ट्रैवर्स कैसे करते हैं। एक नोड का लाइक नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो देयर विल बी डेफिनेटली सम प्रॉब्लम्स फॉर यू, कि आप फेस करोगे क्वेश्चन में कि हमें समझ ही नहीं आ रहा सिंटेक्स कैसे लिख रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन यू आर प्रीटी मच क्लियर अबाउट द सिंटेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। सो दैट्स हाउ इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपको इतना आता है यू आर प्रीटी मच गुड टू स्टार्ट एनी क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग करनी होती है, ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच, देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे स्टार्ट करो, बट दिस इज द स्टैंडर्ड, ओके। या सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द रिकर्शन फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू convert this solution in the iterative one, right? Iterative using BFS or DFS. Okay, it is pretty much clear. So let's state how we will apply recursion here, okay? So listen, this is our question. What our task here is to कि हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें डिलीट करने हैं, ठीक है। देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि हमें डिलीट करने हैं, दैट इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि टू डिलीट फंक्शन हमें दिया हुआ है, राइट। नाउ जैसे सपोज अगर आपको 5 डिलीट करना है, सो आप ये चीज़ देखोगे कि क्या इसके नीचे तो कुछ एलिमेंट्स नहीं है। अगर आपको 3 डिलीट करना है तो आप ये देखोगे कि क्या इसके लेफ्ट और राइट में तो कुछ नहीं है। सो इफ आई विल टेल यू हियर कि सपोज दिस इज योर ट्री विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ ओके। सो अगर आप ऊपर से ट्रैवर्सिंग करोगे फ्रॉम दिस रूट नोड, सो यू विल फाइंड दैट इफ इन योर क्वेश्चन इट इज गिवन कि 3 और 7 को डिलीट करना है, ठीक है। 3 और 7 को डिलीट करना है। सो आप 1 पर आओगे, फिर 2 पर आओगे एंड यू विल फाइंड 3। तो आप क्या करोगे, इस 3 को तो मुझे डिलीट करना था तो आप इसको डिलीट कर दोगे। फिर आप नीचे आओगे तो 4, 5, 6, फिर आपको 7 मिलेगा। बिकॉज ये 3 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है यहाँ से, सो 1 के राइट में नल होगा, राइट। तो आपको फिर इस 3 के जितने भी सब पार्ट्स बनेंगे, जैसे 4 बना और 5 बना, तो आपको इस पर भी पूरा ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा टू फाइंड द डिलीट एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आप 7 को फाइंड करोगे एंड देन यू विल थिंक कि अच्छा 7 को भी डिलीट करना है, सो जस्ट डिलीट दिस एंड रिटर्न द आउटपुट, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले चिल्ड्रंस को विजिट करेंगे। वी विल विजिट चिल्ड्रंस फर्स्ट देन द पेरेंट, ठीक है। हम लोग सबसे पहले चिल्ड्रंस को विजिट करेंगे, जिससे इन फ्यूचर अगर किसी रूट नोड को या पेरेंट को यहाँ से डिलीट करना हो तो हमें पता है कि उसके सारे चिल्ड्रंस विजिट हो चुके हैं एंड वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिलीट नहीं होने हैं, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 and 7, right? So if you will apply the post order traversal, which is nothing but the left first, then right, then root, okay? This is your post order traversal. So you will iterate, सबसे पहले left, then right, तो right में भी left, then right, फिर left, फिर right. So you will traverse this node first, and you will see that this is the node which needs to be deleted, right? So आप सबसे पहले इसको delete करोगे, then you will move to 5. 5 delete होना है क्या, नहीं होना है। then you will go 3. 3 delete होना है क्या, हाँ 3 delete होना है। and you are pretty much sure कि मैं जिस तरीके से ट्रैवर्सिंग कर रही हूँ
इसके सारे चिल्ड्रंस विजिट हो चुके हैं एंड उसमें से जो भी चिल्ड्रंस डिलीट होने थे वो मैं डिलीट कर चुकी हूँ अब तक, राइट। सो आप क्या करोगे, 3 को आराम से डिलीट कर दोगे एंड 4 और 5 को यहाँ से ब्रेक करके अपना अलग ट्री बन जाएगा, ठीक है। सो इट विल वर्क सिमिलरली लाइक आपका 1 यहाँ पर रहेगा, 2 and 3 is already deleted, so you will have your 4 as another tree, you will have your 5 and 6, so you will having 3 trees, this is the root, this is the root, this is the root, right, and your output will be 1, 4 and 5, right, this will be your output. So I am pretty sure कि आपको पूरा question as well as the examples एकदम clear है एंड कैसे हम लोग रिकर्शन में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्लाई कर रहे हैं एंड व्हाई वी आर अप्लाइंग इट, ओके। सो इट इज क्लियर, लेट्स थिंक हाउ वी विल अप्लाई रिकर्शन, ओके, लेट्स थिंक हाउ वी विल अप्लाई रिकर्शन। ओके, सो देयर आर सम स्टेप्स। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो व्हाट इज योर इंडेक्स। So what is my index here in this question? My index is the root node, then this node, then this node. So these are my index and यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है रिकर्शन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सेकेंड इज आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबिलिटीज, ओके, हमको सारी पॉसिबिलिटीज को देखना है, राइट। सो फॉर दिस वन व्हाट द पॉसिबिलिटीज आई हैव कि मैं यहाँ के लेफ्ट में जा सकती हूँ एंड देन आई कैन गो टू द राइट वन, ठीक है। आई हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज एंड थर्ड इज परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, डिलीट ऑपरेशन, आपको डिलीट करना है नोड, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल स्टेप्स टू अप्लाई रिकर्शन इन एनी क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स थिंक दिस शुड बी अ फंक्शन ऑफ योर रिकर्शन, द इंडेक्स इज नथिंग बट द रूट नोड, देन देयर शुड बी सम थिंग लाइक जो आपका टू डिलीट फंक्शन दिया हुआ है, टू डिलीट वेक्टर दिया हुआ है एक्चुअली, तो उस वेक्टर के पास क्या है 3 और 5। अब सपोज ये वेक्टर बहुत ही बड़ा होता, जैसे आपका पास बहुत सारे वैल्यूज होते, सो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नोड पर खड़े हो, ठीक है, जैसे आप 3 पर हो या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर नोड पर हो, तो आप क्या सोचोगे कि क्या ये 3 डिलीट होना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे क्या ये 3 डिलीट होना है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको टू डिलीट फंक्शन से, टू डिलीट वेरिएबल से ही पता चलेगा। अब वो टू डिलीट अगर एक वेक्टर है, अगर ये टू डिलीट एक वेक्टर है, तो आपको O ऑफ n टाइम देना होगा, O ऑफ n टाइम देना होगा ये पता लगाने के लिए कि क्या ये 3 डिलीट होना है। फिर इसी तरीके से 5 है, तो आपको फिर से O ऑफ n टाइम देना होगा सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि क्या ये 5 डिलीट होना है। सो दिस इज द लीनियर टाइम, ठीक है, दिस इज द लीनियर टाइम, बट इट इज अ वेरी बैड अप्रोच कि अगर आप पूरे वेक्टर पे ट्रेवर्स करोगे और बार बार आप O ऑफ n का टाइम दोगे, ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ सेट, बिकॉज सेट का लुकअप टाइम O ऑफ 1 होता है, ठीक है, एज यू नो कि सेट का लुकअप टाइम O ऑफ 1 होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टू डिलीट वेरिएबल है इसको एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे, सब 3 and 5। सो अब अगर मैं इसमें से पता लगाती हूँ कि 3 डिलीट होना है कि नहीं, सो दैट विल O ऑफ n टाइम, फिर प्लस O ऑफ n टाइम, सो इट इज अ वेरी फास्टर वन, राइट। तो हमने ये पता लगा लिया कि वाई वी आर टेकिंग अ सेट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वेक्टर, राइट, इट इज प्रीटी मच क्लियर। सो लेट मी शो यू, yeah, so we will be taking a to delete set here as well as the forest one, so that is your vector जो आपको रिटर्न करना है। so this recursive function is going to tell you that कितने सारे nodes delete होने हैं and what will be the ultimate forest after deleting all the nodes, ठीक है, that are given in the question, right। so that will be your ultimate goal here। so what you will do in the recursion कि if there is no root, if the root which you have given is null, so what you will return here is null, okay, or we can say the null PTR, okay, null pointer, or you can simply type NULL in capital। so this is how, and then you will see कि root के left में हम लोग के पास क्या आना चाहिए। so that will be, you will be calling this function again with the root का left and to delete and forest, right,
एंड रूट के राइट में क्या आना चाहिए, रूट के राइट में हमारे पास आएगा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, आप बहुत ध्यान से इसको समझो, रूट के राइट कॉमा इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट और राइट पहले विजिट हो गया एंड देन आपको क्या करना है, अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि जो भी हमारे पास करंट का रूट है, ठीक है, सो अभी ये जो रूट है इसकी अगर वैल्यू बेसिकली क्या होगा, आपको सेट में से फाइंड करना होगा कि टू डिलीट वाला जो सेट है उसमें अगर इस रूट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू टू डिलीट का एंड, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है वो टू डिलीट में है, मतलब ये वाली वैल्यू डिलीट होनी है अभी, ठीक है। अभी अगर इसको डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखोगे सबसे पहले तो, जैसे सपोज आपके पास ये है 1 2 3, अगर इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं ये भी तो चेक करूंगी कि इसके लेफ्ट राइट में क्या है, तो लेफ्ट और राइट को चेक करना पड़ेगा। तो इफ रूट का लेफ्ट, अगर रूट का लेफ्ट कुछ है तो आप उसको पहले फॉरेस्ट में डाल दो, बिकॉज ये तो एकदम अलग हो गए, अब ये दोनों चीजें एकदम कट गई इधर से, तो ये पूरा हम लेफ्ट लाइक फॉरेस्ट में पुश कर देंगे। सो फॉरेस्ट डॉट पुश बैक, और वही वाला आप डाल दो रूट का लेफ्ट, राइट, दिस विल बी योर कोड। एल्स इफ अगर आपका रूट का लेफ्ट यानी कि रूट का अगर राइट है तो यू विल परफॉर्म सेम ऑपरेशन अगेन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, फॉरेस्ट में आप पुश बैक करोगे, फॉरेस्ट में आप पुश बैक करोगे क्या, रूट का राइट, ठीक है, रूट का राइट आपने पुश बैक कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या चेक करोगे, सबसे पहले तो आप डिलीट कर दोगे, क्या डिलीट करना है, रूट, ठीक है, वो आपने डिलीट कर दिया पूरा, ये डिलीट हो चुका है। अब ये 2 और 3 जो बचे हैं आपके, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट में पुश हो चुके हैं। नाउ ओके, यहाँ पे यहाँ क्लोज कर दो आप, और इन फ्यूचर आपको एक और चीज़ यहाँ चेक करनी है कि क्या ये जो पर्टिकुलर रूट है, क्या इसको तो डिलीट नहीं करना था, तो वो चीज़ हम चेक करेंगे इन द मेन फंक्शन एट द एंड, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज की बात नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जब कोड लिखते हैं सो वी विल आइटरेट ईच एंड एवरी स्टेप कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, जस्ट स्टे टिल द एंड। ओके, सो ये हमारा रिकर्शन का एक स्यूडो कोड हम कह सकते हैं दैट वी हैव रिटन। ओके, सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस इन द कोड, ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस इन द कोड। So yeah, let's remove this. Let's create a function that is the private one. Okay. And now what your task here is, okay. So yes, let's see what will be my recursion function. So we will be taking a function that is process nodes, that is returning a tree node itself, process node. ओके, सो आप ट्री नोड क्या लोगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे रूट ले लो, नोड ले लो, एक ही बात है, ठीक है। और अनऑर्डर्ड सेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, वी आर टेकिंग एन अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है, टू डिलीट सेट, ठीक है, दिस इज माई टू डिलीट सेट, एज वेल एज आई एम गिविंग अ वेक्टर ऑफ ट्री नोड, ठीक है, जो कि मुझे रिटर्न करना है एट द एंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है, दिस इज हाउ इट विल वर्क। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यही चीज चेक करनी है कि इफ नोड, अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता है सो व्हाट यू विल रिटर्न, सिंपली नल। फिर आप नोड के लेफ्ट में जाओगे,
एंड आप फिर से ये प्रोसेस नोड वाला फंक्शन रन करोगे, बिकॉज इसी तरीके से हम लोग रिकर्शन लगाएंगे। अभी मैं इसका पूरा आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी कि कैसे ये एक एक चीज़ें वर्क कर रही हैं रिकर्शन में, ठीक है। एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको एकदम चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एट द एंड। जा रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, नोड के राइट में हमको क्या पुश करना है, ठीक है। नोड के राइट में हमको क्या डालना है यहाँ पे, प्रोसेस नोड, ठीक है, प्रोसेस नोड, नोड का राइट, ठीक है, नोड का राइट टू डिलीट सेट एंड फॉरेस्ट, ओके। एंड देन व्हाट वी विल डू हियर इज, एक सिंपल सा हमको क्या लगाना है कि अगर वो पर्टिकुलर नोड, if that particular node is in the delete set, right, if it is in the delete set, ठीक है, फाइंड करो कि नोड की जो वैल्यू है क्या वो डिलीट सेट के अंदर है, ठीक है, टू डिलीट सेट डॉट एंड। तो अगर नोड का लेफ्ट था तो उसको फॉरेस्ट में डाल दो। देयर आर वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे हम लोग रिकर्शन लगाते हैं, हाउ वी इम्प्लीमेंट इट एंड इन द आइटरेशन फॉर्म, ठीक है। द स्टेप्स आर प्रिटी सिंपल, ठीक है। हम लोग को राइट में देखना है पहले तो कि फॉरेस्ट डॉट पुश बैक, नोड के राइट में अगर कुछ है तो उसको हमको फॉरेस्ट वाले वेक्टर में पुश करा देना है, एंड एट द एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिलीट द नोड and return null, okay, this is how it will work। and at last if there is no node जो कि delete होना है तो आप simply उस node को ही return कर दोगे, right। so this is how the recursion function is look like। now let's implement this in the main function। so सबसे पहले तो आपको unordered set लेना पड़ेगा because आपको question में set नहीं दिया हुआ है। so this is the to delete set, right, this is the to delete set। एंड आपको कैसे बनाना होगा, ठीक है, एक ही लाइन में हम लोग बना लेंगे, बिकॉज कहाँ से टू डिलीट डॉट बिगिन से स्टार्ट करेंगे एंड टू डिलीट डॉट एंड, ठीक है। वेक्टर ऑफ ट्री नोड, दिस इज योर फॉरेस्ट वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक रूट वाले को लगाना है एंड प्रोसेस नोड रूट टू डिलीट सेट आप यहां से पास करोगे एंड यू विल पास द फॉरेस्ट हियर, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड नाउ व्हाट योर टास्क हियर इज टू, सबसे पहला चेक करो कि क्या रूट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो आपको उसको भी पुश करना पड़ेगा इन द फॉरेस्ट, अदरवाइज अगर नहीं कर रहा है सो देयर इज नो नीड टू पुश इट इन द फॉरेस्ट, ठीक है। एंड एट लास्ट व्हाट यू विल रिटर्न, आपको यहाँ से फॉरेस्ट को ही रिटर्न करना है, ठीक है। सो दिस इज योर होल कोड। लेट्स सी हाउ द रिकर्शन फंक्शन इज वर्किंग हियर, राइट, लेट्स सी हाउ द रिकर्शन फंक्शन इज वर्किंग हियर। सो लिसन, आपके पास एक फंक्शन है दैट इज योर की आप सबसे पहले 1 को ले रहे हो एंड विद द टू डिलीट एंड विद द फॉरेस्ट, ठीक है। टू डिलीट एंड फॉरेस्ट यहाँ पे हमें बार बार नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज टू डिलीट इज सेम, फॉरेस्ट आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर फॉरेस्ट एंड आप सबसे पहले क्या जाओगे, राइट में, सॉरी लेफ्ट में जाओगे एंड लेफ्ट में क्या था मेरे पास, लेट्स क्विकली सी द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेफ्ट में मेरे पास 2 है यहाँ से, सो दिस इज योर 2 एंड टू डिलीट तो वही रहेगा एंड फिर फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट अभी एम्प्टी है, फिर आप यहाँ से जाओगे इन द लेफ्ट दैट इज योर 4, ठीक है। फिर आप यहाँ 4 में जाओगे दैट इज सेम, दैट इज योर फॉरेस्ट। फिर आप जाओगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है दैट इज नल, दैट इज ऑल्सो नल। तो अब ये वाला फंक्शन हमारा परफॉर्म होगा। तो इसमें चेक करो कि क्या ये 4 क्या डिलीट होना है, क्या ये 4 डिलीट होना है, नहीं ये 4 डिलीट नहीं होना है अभी। तो व्हाट यू विल डू, आप सिंपली इस नोड को ही रिटर्न कर दोगे, दैट इज योर नोड और दैट इज नथिंग बट योर 4, राइट। अब आप क्या करोगे, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1, तो अब आप इसको प्रोसेस करोगे, ठीक है, इसको प्रोसेस करोगे
तो लेफ्ट में तो हमने चेक कर लिया, अब राइट वाला चेक करेंगे। तो राइट में 5 है विद दिस विद फॉरेस्ट। तो क्या ये 5 डिलीट होना है? हाँ, ये 5 डिलीट होना है। लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं। सो आप क्या करोगे, 5 से देखोगे कि 5 डिलीट होना है। हाँ, डिलीट होना है। सो 5 से आप ऊपर जाओगे तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से, नल, और 5 वाले को आप डिलीट कर दोगे विद दिस विद नथिंग इन दी फॉरेस्ट। ठीक है, विद नथिंग इन दी फॉरेस्ट, बिकॉज फॉरेस्ट तो अभी भी एम्प्टी ही है। फिर आप 2 पर आओगे तो आपने चेक कर लिया कि 2 का हमने दोनों चीजें ही सो यस, दिस इज हाउ द रिकर्शन वर्क्स हियर। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ तक हमारा फॉरेस्ट नल है। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे तो 1 और यहाँ पर 2 डिलीट की कोई वैल्यू नहीं है, फॉरेस्ट यहाँ पर भी नल है। एंड देन वी विल मूव टू इट्स राइट एंड एज यू कैन सी 3 6 7 इज इन द राइट। सो वी विल सी 3 and in the right direction. So forest is again null here. So 6 7 is here. So your task is to delete 3. Okay, so you will move to 6 and 7, then you will think about 3, right? So 6 पर हम लोग मूव करेंगे यहाँ से and 7 पर मूव करेंगे. So 6 and 7 is कि वो delete नहीं होना है. So what you will do, you will move to 3 and you will see कि यहाँ से भी node return हो रहा है, यहाँ से भी node return हो रहा है. So you will see कि 3 को delete करना है. So 6 and 7 को delete करना पड़ेगा. तो लाइक 6 और 7 को हमें अलग अलग फॉरेस्ट में ऐड करना पड़ेगा. सो नाउ योर फॉरेस्ट विल बी, इस स्टेप पर आपका फॉरेस्ट हो जाएगा 6,7. सो दिस बेसिकली मीन्स कि आपका 6 और 7 ऐड हो चुका है. सो अभी यहाँ से आपका क्या रिटर्न होगा, यहाँ से आपका नल रिटर्न होगा, बिकॉज ये वाला जो लिंक है आपका ब्रेक हो गया, बिकॉज 3 मैंने डिलीट कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज हाउ रिकर्शन वर्क्स. फिर उसके बाद 6 एंड 7 से आपका यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, दिस नोड, यहाँ ये वैल्यू कुछ है और ये वैल्यू यहाँ पर नल है. सो नोड के लेफ्ट से क्या रिटर्न हुआ है, डायरेक्ट 2 वाली ही वैल्यू, और नल है तो यहाँ पे नोड डायरेक्टली मेरे को रिटर्न हो जाएगा, दैट इज माई 1. ठीक है, तो जो हमारा मेन फंक्शन है वहाँ पर जो मैंने नोड लगाया था दैट विल बी माई 1. अब ये जो रूट है मेरा 1, तो उसको भी मैं चेक कर लूँगी कि क्या ये 1 तो डिलीट नहीं होना है. तो 1 के लिए चेक करेंगे हम, तो 1 डिलीट नहीं होना है यहाँ पे एज सच, तो हम लोग डायरेक्ट ही नोड को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, वी विल रिटर्न द नोड. और अगर ये 1 डिलीट होना था तो फिर हम इसका जो लेफ्ट और राइट है दोनों को हम फॉरेस्ट में पुश कर देंगे. सिमिलरली लाइक फॉरेस्ट में हम लोगों ने क्या पुश कर दिया, 2 पुश कर दिया, और राइट में तो कुछ था ही नहीं, तो इस तरीके से हम रिटर्न करेंगे. और अगर ये डिलीट हो गया तो हम यहाँ से क्या भेजेंगे, नल. तो जब ये नल जाएगा, तो जैसे कि मैंने अभी कोड में आपको बताया कि इफ़ इट विल बी नल हियर, अगर ये रूट है तो हम उसको फॉरेस्ट में पुश करेंगे. अदरवाइज अगर वो रूट नहीं आता है हमारे पहले वाले फंक्शन से, तो हम उसमें कुछ भी पुश नहीं करेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल डू इट. सो या आई हैव शोन यू कि हम लोग कैसे रिकर्शन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ओके, सो लेट्स क्विकली रन दिस कोड एंड सी इट्स आउटपुट. ठीक है, आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप पहले ड्राई रन करो पेन एंड पेपर पे, एंड इफ इट वर्क्स फाइन आइदर लॉजिकली सिंथेटिकली एवरीथिंग, देन ओनली यू नीड टू रन इट. बिकॉज किसी भी इंटरव्यू में आपको हमेशा गूगल स्लाइड्स या फिर गूगल डॉक्स एनीथिंग आपको नोटपैड तक पे कोड लिखना पड़ सकता है. सो मेक श्योर कि आपकी हैबिट हो कि एक एक लाइन आप समझ पाओ कि व्हाट दिस लाइन डज, कि आप ऐसा नहीं रन करके आप समझो कि अच्छा यहाँ कंपाइलर एरर थी या यहाँ सिंथेटिकल एरर थी. दैट्स नॉट द very best approach, right? So let's quickly submit this code. Okay, so it is submitted. Now let's talk about the time and space complexity, right? Let's talk about the time and space complexity. So this recursion function will take O of n. ठीक है, this time complexity will be, let me break it down for you. What will be the time complexity? The first is कि आपका जो recursive traversal होगा that will be taking your O of n, the recursion function, right? And your to delete set. ठीक है, जो to delete set हमने बनाया था वो भी आपका O of n टाइम लेगा to build. ठीक है, and I can say O of n because जो m की वैल्यू लेस देन n है. ठीक है, बिकॉज जो भी आपके नंबर ऑफ टू बी डिलीटेड एलिमेंट्स दिए हुए हैं दैट इज O of n. सो इन द वर्स्ट केस इट विल बी O of n, राइट?
So yes, the process node function will be taking O of 1 time because it is simply deleting. ठीक है. So overall the time complexity here is O of n. The overall time complexity here is O of n. Let's talk about the space complexity. Let's talk about the space complexity now. So you can see कि हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर O of n ही होगा. अब ये क्यों होगा? बिकॉज जो हमारा टू डिलीटेड सेट हमने बनाया है दैट इज टेकिंग O of n टाइम और वी कैन से O of m स्पेस. ठीक है. इन द वर्स्ट केस इट इज ऑल्सो टेकिंग द O of n, राइट. अब उसके बाद जो हमारा प्रोसेस नोड होता है, जो हमारा रिकर्शन फंक्शन होता है, उसमें हमेशा हम एक स्टैक लेते हैं. ठीक है. स्टैक इनिशियलाइज होती है एंड इन द वर्स्ट केस इट इज ऑल्सो टेकिंग अप टू n एलिमेंट्स. सो एंड देयर इज अ फॉरेस्ट वेक्टर. ठीक है. फॉरेस्ट वेक्टर है that is also going to store up to n elements in the worst case. So that's how we will calculate the space complexity here. So overall it is O of n. So this is a pretty much better approach, but हम अलग अलग approaches सीखते हैं. So recursion function में भी हमारा O of n और n लग रहा है in irrespective of time and space. And अभी जब हम iterative approach लिखेंगे that is also going to take the O of n time. But in recursion there are some अदर टाइम, जैसे कि हम जब रिकर्शन लगाते हैं तो एक कॉल से दूसरी कॉल में ट्रैवर्स ट्रांसफ़र होने में भी कुछ टाइम लगता है. तो वो टाइम भी कैलकुलेट होता है बट हम उसको लिख नहीं पाते. ठीक है. जैसे O of n है तो हमने n ही लिख दिया, बट आइट्रेशन में वो थोड़ा टाइम कम हो जाता है. बाकी उसको हम लिखने के लिए तो O of n ही लिखते हैं. ठीक है. उसको भी. सो या लेट्स टॉक अबाउट द आइट्रेटिव अप्रोच नाउ. ठीक है. यहाँ तक हमारा रिकर्शन अप्रोच कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द आइटरेटिव अप्रोच नाउ. ठीक है. अब आइटरेटिव में हम लोग यहाँ पर BFS का यूज करेंगे. और BFS क्या होता है? एक क्यू हम लोग लेते हैं, क्यू इनिशियलाइज करते हैं और हम तब तक रन करते हैं जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता. ठीक है. तब तक हम लोग रन करेंगे यहाँ पे. सो लेट्स सी कि कैसे ये रिकर्शन वाला यहाँ पे काम करेगा फंक्शन इन द आइटरेटिव वन. ठीक है. तो लिसन, हमारे पास क्या दिया हुआ है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस इज आवर ट्री. ठीक है. दिस इज आवर ट्री. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दिस वन को इसमें इम्प्लीमेंट कराना है इन द क्यू. ठीक है. आपने क्यू में वन को डाल दिया. अब आप सबसे पहले वन को यहाँ से निकालोगे बाहर एंड यू विल सी कि 2 और 3 को पुश करा दो अंदर. ठीक है. फिर उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल चेक कि आपका क्या ये जो 2 और 3 है, क्या ये नोड डिलीट होना था? इफ इट नीड्स टू बी डिलीटेड, आप क्या करोगे? जैसे 3 है, सपोज योर टू डिलीट इज 3,7. ठीक है. तो आप क्या करोगे? 3 को डिलीट करा दोगे एंड आप इसके राइट में नल पुश कराओगे. ठीक है. सो दिस इज ब्रेक्ड. अब क्या होगा? आप सबसे पहले फिर 2 को निकालोगे एंड 2 से आप देखोगे लेफ्ट राइट कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते. फिर हम लोग क्या देखेंगे? 3 से हम कहीं मूव कर सकते हैं. ठीक है. 3 से क्या हम कहीं मूव कर सकते हैं? यस, वी कैन मूव टू 4 एंड 5. ठीक है. तो 4 एंड 5 में पुश करा दूंगी एंड 3 मेरा डिलीट हो चुका है. ठीक है. 3 इज डिलीटेड. 3 यहाँ से पूरा कंप्लीटेड रिमूव हो गया. फिर हम 4 और 5 को देखेंगे. तो सबसे पहले 4 निकाला, 4 से हम कहीं नहीं जा सकते. फिर हमने 5 चेक किया, 5 से वी कैन मूव टू 6 एंड 7 एंड वी नो दैट 7 इज द नोड जो कि डिलीट करना है. सो 7 को हम डिलीट करेंगे. सबसे पहले हम 6 के लिए देख लेते हैं. सो 6 के लिए भी हम कहीं नहीं जा सकते. फिर 7 को हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे. सो द नोड्स जो कि हमें कंप्लीटली रिमूव करने हैं उसके लिए हम लोग समथिंग वी विल राइट द फॉरेस्ट. जैसे 1 को हमने उसमें पुश करा दिया, 4 को पुश करा दिया, 5 को पुश करा दिया. सो इस तरीके से हम लोग कुछ अपना आइटरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. व्हेन वी विल राइट द कोड इट विल बी प्रीटी मच क्लियर. ठीक है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द कोड. ओके. सो जस्ट रिमूव द प्रीवियस वन. ठीक है. So there is no need to write any separate function. We will perform everything in this delete node function here. So what your task here is to, if there is no root, okay, if the tree is empty, then you need to return the empty vector. Okay. And the same similar step. ठीक है. similar step हम लोग लेंगे यहाँ पे integer and there is a delete set. ठीक है. we are taking a delete set. और वो हम कैसे बनाएंगे? जो हमारा to delete दिया हुआ है ऑलरेडी,
हम उसके बिगिन से लेके एंड टू डिलीट के एंड तक, ठीक है, वी आर परफॉर्मिंग दिस, राइट। अब एक वेक्टर लिया मैंने ट्री नोड एंड दिस इज योर फॉरेस्ट वेक्टर विच नीड्स टू बी रिटर्न्ड, राइट। अब हमको BFS लगाना है, सो वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग अ ट्री विद द ट्री नोड टाइप एंड लेट्स टेक इट एज अ क्यू, राइट। ठीक है, छोटा वेरिएबल रख रहे हैं बिकॉज इन फ्यूचर वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस क्यू मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले रूट को पुश कराते हैं एंड द सिमिलर स्टेप, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता है हमारा, वी विल परफॉर्म। एंड सबसे पहले हम लोगों ने ट्री नोड ले लिया फ्रॉम द क्यू का फ्रंट, सो दैट इज माई करेंट नोड, राइट, दैट इज माई करेंट नोड क्यू का फ्रंट, एंड देन वी विल पॉप द क्यू, right, then we will pop the front node. So if that current node, listen carefully, if that current node का left अगर exist करता है, so we need to push it in the queue, सबसे first हमें push करना पड़ेगा because we need to check it in the future, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो हमारा deleted set हमने बनाया है, ठीक है, जो हमने deleted set बनाया है उसमें हम find करते हैं करंट नोड के लेफ्ट की वैल्यू को, ठीक है, करंट नोड के लेफ्ट की वैल्यू को, इफ इट इज नॉट इक्वल टू एंड, ठीक है, इसका मतलब वो वैल्यू हमें डिलीटेड में फाइंड हो जाती है। अगर वो वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम करंट नोड के लेफ्ट को नल कर देंगे, ठीक है, करंट नोड के लेफ्ट को हम नल कर देंगे। फिर सिमिलरली हम लोग क्या चेक करेंगे राइट के लिए, सिमिलरली वी विल चेक फॉर राइट, इफ करंट नोड का राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी हमने करंट नोड को चेक नहीं किया है, सिर्फ उसके लेफ्ट और राइट को चेक किया है, ठीक है। करंट नोड को कि राइट को पहले तो पुश करा दो क्यू में फॉर फर्दर ऑपरेशंस एंड सबसे पहले डिलीट सेट डॉट फाइंड करो जो आपका करंट नोड है उसका राइट का वैल्यू, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू डिलीट सेट डॉट एंड आता है, इसका मतलब है राइट वैल्यू भी डिलीट होनी है अगर, सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, आप सिंपली उसको डिलीट कर दोगे एंड करंट नोड के राइट में आप फिर से नल इसमें इंसर्ट करा लोगे। सो अभी आपके पास नोड्स की वैल्यू अपडेट हो चुकी है और वो नोड आपके पास क्यू में भी हैं फॉर फर्दर ऑपरेशंस, ठीक है। अगर जो आपके पास करंट नोड अभी है अगर वो भी डिलीट होना है, ठीक है, एंड इट इज नॉट नल, तो व्हाट यू विल डू इफ डिलीट सेट, ठीक है, हम डिलीट सेट में से चेक करेंगे डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड करते हैं जो करंट नोड की वैल्यू है अगर वो भी एग्जिस्ट कर रही है डिलीट सेट के अंदर, ठीक है, करंट नोड, ओके, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज डॉट एंड, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है सो व्हाट यू विल डू, अगर करंट नोड का लेफ्ट नल नहीं है तो उसको सबसे पहले तो फॉरेस्ट में डालो, ठीक है, फॉरेस्ट में पुश कराओ उसको, किसको, करंट नोड के लेफ्ट को, ठीक है, करंट नोड के लेफ्ट को पुश करा लिया। फिर आप क्या करोगे, इफ करंट नोड का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में हम देख चुके हैं कि लेफ्ट राइट क्या क्या होने चाहिए, कि ये नल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस तरीके से हम लोग देख चुके हैं पहले ही। फिर करंट नोड का राइट भी पुश करा दो फॉरेस्ट में इफ इट इज नॉट नल, ठीक है। इतना काम के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे सारे ऑलमोस्ट स्टेप्स हो चुके हैं। द लास्ट स्टेप इज कि अगर डिलीटेड सेट में जो रूट की वैल्यू है अगर वो भी एग्जिस्ट करती है, इफ डिलीट सेट डॉट फाइंड रूट की वैल्यू, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम एंड तक यहाँ तक चले गए हैं डिलीट सेट में एंड इट इज नॉट एग्जिस्टेड, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग फॉरेस्ट के अंदर पुश बैक करेंगे कि ये जो रूट है ये भी हमारा एक ट्री बना रहा है, ठीक है, तो हम लोग रूट को उसमें पुश कर देंगे एंड एट लास्ट वी विल रिटर्न द फॉरेस्ट, ठीक है, एट लास्ट वी विल रिटर्न द फॉरेस्ट। सो दिस इज द आइटरेटिव अप्रोच। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, देयर आर 3 फंक्शंस और देयर आर 3 ऑपरेशंस विच वी आर परफॉर्मिंग। अगर करंट नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्यू में उसको पुश कराएंगे, इफ राइट एग्जिस्ट करता है तब भी हम सेम काम करेंगे, एंड अगर हमारा जो करंट नोड है अगर उसको ही डिलीट कराना है तो हम देख लेंगे कि क्या लेफ्ट और राइट में से कुछ चीज़ बची है,
अगर लेफ्ट और राइट का कुछ चीज़ें हैं तो सबसे पहले उसको सिक्योर कर लेंगे फॉरेस्ट में, उसके बाद हम उसको डिलीट करा देंगे, ठीक है। उसको सिक्योर करने के बाद हम उसको डिलीट करा देंगे। ओके, डिलीट का मतलब पॉप तो हो ही चुका है हमारे पास क्यू में से, तो वो ऑलरेडी डिलीटेड ही है। एंड दिस इज हाउ द होल आइटरेटिव अप्रोच। एंड ये हमारा BFS फंक्शन है, दिस इज आवर BFS फंक्शन, ठीक है, क्यू बेस्ड। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। ठीक है, लेट्स क्विकली सबमिट इट। So it is submitted. As you can see, the runtime is 70.59% and it is pretty good. It is pretty good. So let's talk about the space and time complexity for this approach. So without any delay, let's quickly see. The time complexity here, as I have told you earlier also, the time complexity is O of n. The time complexity is O of n because it is taking the to delete set वाला function, ठीक है। फिर उसके बाद you are performing the BFS, ठीक है, that is also taking O of n. And yes, this is how the overall time complexity here is O of n. And let's talk about the space complexity. So space complexity, सबसे पहले तो delete set बन रहा है, so that is taking your O of n time. And उसके बाद आपकी जो queue है, that your queue is also initialized, तो वो भी in the worst case is taking O of n, ठीक है। एंड जो टू डिलीट सेट है उसको आप O of n मानो या O of m मानो, इट डजेंट मैटर बिकॉज m इज स्मॉलर देन n, और इन द वर्स्ट केस इट विल बी टेकिंग O of n ओनली, ठीक है। सो ओवरऑल द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज O of n. So this is how the whole algorithm as well as the code as well as the time complexity. So I hope from the very start, from the brute force till optimal, it is very clear to you. So I hope guys I have made it very easy for you to understand this question. If so, please make sure to like this video, subscribe my YouTube channel, and do share it with your friends for more such amazing content. See you soon in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.